Hello students and my dear friends, I am Dr. Shukla and today is 9th of October 2020, Friday. Inspiration of the day is winners never quit and quitters never win. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Sensex reclaims 40k level after more than 7 months. Bombay Stock Exchange Sensex on Thursday regained the 40,000 mark after more than 7 months, while Nifty has also shown the positive hit. And why all these two indices have shown the reclaim even after 7 months? Because of the optimism around the US stimulus package and the rebound in Indian economy expected because of the easing of further COVID-19 related restrictions. तो इंडियन इकोनॉमी में COVID-19 related restrictions हो रहे हैं, अनलॉक 5.0 आ रहा है जिसमें बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ को भी रिज्यूम किया जा रहा है. फेस्टिव सीजन नियर आ रहा है जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और अदर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो रही है. ऑन द अदर हैंड यूएस स्टिमुलस पैकेज ने एक ऑप्टिमिज्म सेंड किया है अराउंड द यूएस इकोनॉमी. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारे इंडिकेटर्स की वजह से कल सेंसेक्स और निफ्टी ने एक पॉजिटिव रिबाउंड किया, जिसमें इवन सेंसेक्स ने तो लास्ट 7 मंथ्स के बाद 40,000 के मार्क को फिर से क्रॉस किया है. मोस्ट एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स have shown the overnight gains or the positive gains because of the hope that this particular US stimulus deal could be inked before the presidential election in November. अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जहां पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के डेटा के बाद से आईटी स्टॉक ने दोबारा से गेन स्टार्ट कर दिया था. दैट वाज द एक्चुअली पॉजिटिव वेव डेवलप्ड बाय टीसीएस or Tata Consultancy Services in the month of September, and because of that other IT stock has also led to the gain into their domestic market. Apart from all these factors, according to the provisional data on the exchanges, Indian stock market have also seen the flood of foreign portfolio investor, that is FPI. So on Thursday, FPI bought the equities worth rupees 978 crore on Thursday. And if we include the last 5 trading sessions and compiled all the data, then in last 5 trading sessions, FPIs have actually pumped approximately 5,000 crore into Indian domestic stocks. तो हम ये कह सकते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है. एफपीआई इन्वेस्टर्स ने जो इक्विटी बाई करी है, टीसीएस का जो पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर हुआ, जिसके बाद टीसीएस ने बाई बैक का शेयर बाई बैक का अनाउंसमेंट किया है. यूएस स्टिमुलस को लेकर के भी जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी में कोविड-19 को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, इन सब की वजह से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड एशियन मार्केट have shown the movement towards the gain. की प्लेयर्स की बात करें, जो गेनर्स है, जो टॉप 5 गेनर्स है, उसमें RIL, HCL, इंफोसिस, सन फार्मा एंड TCS. तो हम देख सकते हैं 3 इन टॉप 5 गेनर्स में से 3 स्टॉक जो हैं वो IT फर्म्स के ही हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम गेनर्स इफ वी सी लूजर्स, तो इंडसइंड बैंक, SBI, Bajaj Finserv, Axis Bank and Bajaj Finance. So all these companies somewhere belongs to financial industry. Banks हैं और कुछ NBFCs हैं. तो losers में basically banks का stock और NBFCs के stock भी देखने को मिले. Gainers में top position RIL ने gain की with 59.6% change in the price, whereas losers में IndusInd Bank ने top किया है. And this is the actual movement of BSE market capitalization since February, and we can see it's actually a linear sort of movements with the shortfalls, and this data indicate the slight recovery into the Indian economy. थोड़ा थोड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं, बट एक्चुअली देखें तो इट्स अ लीनियर ग्रोथ. तो फरवरी के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में स्लो पेस से ही भले लेकिन इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा. और थर्सडे को इसने पिछले 7 महीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अचीव करी है.
and this is the movement of Sensex. So after the a steep fall in last few days, Sensex has again rebound, and it is coming closer to the February level that we can see 40,281, and now Sensex is 40,883. So that is actually nearby the February level. So this movement in the stock market actually indicating the recovery into the Indian economy, although albeit in a slight manner. Now look at into the article number 2 given on page number 4. India's richest club sees 9 new entrants. थर्सडे को फोर्ब्स ने इंडिया के 100 या 100 richest man का डेटा रिलीज किया ऑन 2020 basis. And that data indicating that the COVID-19 pandemic may have hit India very hard, but actually the 9 newcomers or the 9 entrants has joined the rank of India's top richest. तो 100 की लिस्ट में 9 नए एंट्रेंट्स आए हैं या न्यू कमर्स आए हैं जिन्होंने इंडिया के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट को ज्वाइन किया है. एंड दिस इज द नेम ऑफ ऑल दोज न्यू एंट्रेंट्स विद द नेम ऑफ देयर कंपनीज, जिसमें कुछ बहुत प्रोमिनेंट नाम है जैसे इन्फो एज, रिलैक्सो फुटवेयर्स, आरती इंडस्ट्रीज, IPCL लेबोरेटरीज, SRF, हैटसन एग्रो, इन सब के जो ओनर्स हैं उनके नाम हैं. तो 9 न्यू एंट्रेंट्स ने लिस्ट ज्वाइन करी है. दैट सिंपली इंडिकेट्स दैट in spite of the COVID-19 induced pandemic, there are few companies that actually managed to gain profit. And data also indicated that half of the nation's 100 richest saw gains. Means 100 में से 50 जो richest man थे उन्होंने अपने worth में, अपनी wealth में gain register किया है in spite of this COVID-19 induced economic recession. And because of that rising a collective 40% to that is $117.5 billion as the benchmark Sensex remained flat over a year ago. तो 100 में से 50 जो इंडिविजुअल्स थे उनकी जो वेल्थ या वर्थ आप कह सकते हैं वो इंक्रीज हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. एंड मोर देन हाफ ऑफ इंक्रीज कैन बी ascribed टू वन इंडिविजुअल दैट इज मुकेश अंबानी. तो अगर हम बात करें 100 में से 50 की ग्रोथ वर्थ या वेल्थ में इंक्रीमेंट देखा गया है और जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसका ओवरऑल 50% इंक्रीमेंट अकेले और सिर्फ अकेले मुकेश अंबानी का है. एंड मुकेश अंबानी एट नंबर 1 पोजिशन फॉर द 5th year consecutively, who added approximately $37.3 billion to his fortune, that approximately 73% high. And because of this addition, the net worth of Mr. Mukesh Ambani is $88.7 billion. तो अगर हम टॉप 10 बिलियनियर्स की या टॉप 10 रिचेस्ट मैन की बात करें इंडिया में जिन्होंने लिस्ट को टॉप किया है तो उसमें क्वाइट फैमिलियर नेम्स हैं जो कि होने चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से लगातार चले आ रहे हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, शिव नादर, राधा किशन दमानी, हिंदुजा ब्रदर्स, साइरस पूनावाला, मिस्टर मिस्ट्री, उदय कोटक, गोदरेज फैमिली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लक्ष्मी मित्तल. And this is the net worth of all these individual given in terms of dollar billion, जिसमें मुकेश अंबानी with $88.7 billion और billion dollar से टॉप पर हैं. And why I am discussing this data as an economic student, why this particular data is important for us. जो अमीर हो रहे हैं, let them be rich. But these types of list clearly indicates the economic disparity or the disparity in terms of economic opportunities available to Indian citizens, especially in the condition where one segment of Indian economy or one section of Indian economy, that is marginalized section, जो हमारे migrated laborers हैं, poor sections हैं, vulnerable group है, they are actually suffering from other types of haves not or deficiency into their even basic amenities. On the other hand, one or the group of individuals and their net worth is continuously indicating. And if we talk about the data, currently 20% of
India's consumer are actually taking the 40% of demand in Indian economy. So that we can easily see the disparity and the diversity in terms of economic opportunities available to Indian citizens. And this type of data or discrepancy or disparity is not only bad for marginalized section or poor section of the society, but it is also harmful in long term for providing the equal business opportunity even to the हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स. क्योंकि कंपनीज में अगर बिजनेस इंडस्ट्री में कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है ना, इट बिकम द प्राइस डिक्टेटर, फर्स्ट मूवर इन एवरी केस, देन द एंट्री बाय अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अगर हम एक क्लासिकल एग्जांपल लें इस समय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, तो जियो की एंट्री के बाद से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो एंट्री के बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए. अब अगर कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है, इट हैज़ टू कम अप विद द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. इतना अमाउंट का फंड हो कि वो एटलीस्ट जियो जैसे सर्विसेज को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन कर सके. अदरवाइज कोई नया स्टार्टअप या कोई छोटी कंपनी, इवन द मीडियम क्लास इंटरप्राइजेस कैन नॉट इंटर इनटू इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. सो इस तरह की डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी और इनइक्वालिटी का लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होता है. हाँ, although I'm not saying that one should not be rich, but it would be a better situation for India if this टॉप 10 लिस्ट गेट शफल्ड ईयर बाय ईयर. अगर ये 10 की जो टॉप 10 की लिस्ट है, अगर ये ईयर बाय ईयर शफल होती रहती, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इट विल बी हैविंग more positive implication on इंडियन इकोनॉमी. जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले लास्ट 13 सालों से मुकेश अंबानी टॉप पर बने हुए हैं. नो वन इज एबल टू एक्चुअली बी द नियर बाय इवन मुकेश अंबानी. अगर आप देखें मुकेश अंबानी जो दूसरी पोजीशन पे इंडिविजुअल है, नेटवर्थ इंडिविजुअल, उसकी नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो एक ग्रुप या एक कंपनी तो बहुत ज़्यादा रिच या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अर्न कर रही है. ऑन द अदर एंड अगर दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, दूसरे इंडिविजुअल्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन कंज्यूमर, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट गिव अनलिमिटेड पावर टू वन इंडिविजुअल इवन विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर और इवन विदाउट एनी पॉलिटिकल मैंडेट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. वर्ल्ड बैंक pegs India's GDP contraction at 9.6%. So, World Bank has tripled its projection of contraction in India's GDP in financial year 2021 from 3.2% earlier to 9.6%, especially in the wake of lockdowns and decline in household इनकम. तो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्शन पहले किया था कॉन्ट्रैक्शन का इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, उसको रिवाइज करके 9.6% तक कर दिया. पहले कितना प्रोजेक्शन था? पहले 3.2% का था. रिवाइज करके 9.6% का कॉन्ट्रैक्शन वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है फॉर इंडियन इकोनॉमी. What are the reason why World Bank has actually increased the contraction projection in Indian economy? Because of the lockdowns, especially localized lockdowns that state governments or the local governments are actually imposing because of the rising COVID-19 cases. On the other hand, because of the number of companies have gone for layoff, retrenchment, जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड की इनकम है, स्पेशली अगर हम बहुत इकोनॉमिक के टर्म्स में बोले, जो डिस्पोजेबल जो इनकम है हाउस होल्ड की वो डाउन हुई है. अगर डिस्पोजेबल इनकम डाउन हुई है तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि मार्केट में डिमांड भी फॉल करेगी. तो डिक्लाइन इन हाउस होल्ड इनकम बिकॉज ऑफ द मास ले ऑफ कंपनीज हैज गॉन फॉर. ऑन द अदर हैंड द लोकलाइज्ड लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग. Majorly because of these two factors, World Bank has actually revised the contraction data for Indian economy.
ऑल्दो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से हाउस होल्ड की इनकम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी अफेक्ट हुई है और उसकी वजह से उनकी सेविंग्स और डिमांड भी अफेक्ट हुई है। वर्ल्ड बैंक का कहना है इट्स अ वेरी वल्नरेबल टू शॉक, बट जो गवर्नमेंट ने रिसेंट रिफॉर्म लिए हैं, जो रिसेंट पैकेज लाए थे आत्मनिर्भर भारत और जो कई रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, दैट रिफॉर्म विल प्रोवाइड द सेफ्टी नेट टू द section which is actually marginalized, which is actually poor. So the reforms government has taken should help to preserve its gain against the poverty as per the World Bank. तो कल वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलीज करी थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक का कहना है that this particular contraction in Indian economy is not just for or not just peculiar to Indian economy, it is actually just like the other economies or more or less in line with the other economies. On the other hand, number of other economists, analysts or strategists have said but a shade better than double-digit decline forecast by many. अगर हम अदर इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट की बात करें तो उन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी में आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन की ही प्रोजेक्शन करी है, बट अदर इकोनॉमिस्ट या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोजेक्शंस हैं दे आर एक्चुअली डबल डिजिट. उनके कंपैरिजन में जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है दैट इज क्वाइट पॉजिटिव और फेवरेबल. So this is the detailed report given by World Bank on Indian economy so that we can actually analyze the upcoming situation for Indian economy. जैसा कि हम देखें GDP ग्रोथ का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 9.6% से फोरकास्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने. प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ को भी डाउनग्रेड किया है या उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है. अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, export of goods and services, imports of goods and services, industry growth और सर्विस ग्रोथ, इन सारे सेगमेंट में, इन सारे केस में वर्ल्ड बैंक ने कॉन्ट्रैक्शन ही फोरकास्ट किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट लाइक अदर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक टू हैज प्रोजेक्टेड positive growth in case of government consumption, in case of एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट कंजप्शन पॉजिटिव रहेगा एज पर द वर्ल्ड बैंक, जैसा सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, जो अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोजेक्शन है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के. तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्राइवर है दैट इज प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ, जिसमें हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो अदर सेगमेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. किसी भी इकोनॉमी के लिए प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ द वर्ल्ड बैंक इज इंडिकेटिंग दैट फॉर इंडियन इकोनॉमी द प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ रेट विल बी नेगेटिव, इट सिंपली इंडिकेट दैट in upcoming time it is very hard for Indian economy to actually recover with the faster pace. अदर कंट्रीज की जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के केस में वर्ल्ड बैंक ने पॉजिटिव प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किया है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन दिया है, जिसमें कहा है बांग्लादेश की जो इकॉनमी वो 2% से ग्रो करेगी, भूटान की इकॉनमी 1.5% से ग्रो करेगी, नेपाल की 0.2% से. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर इकोनॉमीज लाइक जस्ट लाइक पाकिस्तान, मालदीव्स, अफगानिस्तान all have been projected to be on the negative territory of GDP growth, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट किया गया है दैट इज फॉर मालदीव्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. इंडियाज $190 मिलियन आर्मी एमओ लाइंग इन रशिया. जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली इंडिया का चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, चाइना की मिलिट्री के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स में क्लैशेस हो रहे हैं. उस क्लैशेस की वजह से एटलीस्ट 11 बैचेस ऑफ इंडियन आर्मी आर ऑफ अर्जेंटली नीड ऑफ रशियन एम्यूनेशंस. तो या बहुत सिंपल टर्म्स में बोलें, जिस तरह की इंडिया की हॉस्टिलिटी की सिचुएशन चल रही है विद चाइनीज़ मिलिट्री, इंडियन डिफेंस
विंग में 11 बैचेस ऐसे हैं जिनको अभी इमीडिएटली रशियन एम्यूनिशंस की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें ज़रूरत के, इट मीन्स देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ दैट रशियन एम्यूनिशंस। एम्यूनिशन मीन्स कारतूस, जिसमें बंदूक में भर के कारतूस चलाता, दैट इज कॉल्ड एज एम्यूनिशन। So why there is a shortage of Russian ammunition? Because approximately $190 million का रशियन ammunition रशिया के वेयर हाउसेस में आइडल और लाइंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया था इन द मंथ ऑफ February। और वो एम्यूनिशन क्यों लाइंग पड़ा? बिकॉज ऑफ द डिलेड इनटू द शिपमेंट। तो एक साइड में हम देखें तो इंडियन जो डिफेंस विंग है उसको एम्यूनेशंस की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्लैशेस विद चाइनीज मिलिट्री। ऑन द अदर हैंड, all the Russian ammunition worth rupees $190 million are actually lying into the warehouses of Russia since February because of the delay in the shipment. इंडिया ने फरवरी 20 में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था फॉर import of $190 million ammunition, but because of the COVID-19 pandemic, because of the restriction in imports and imports, this particular ammunition is not reaching to Indian border. Indian procurement procedures stimulate that ammunition can be shipped only after a mandatory pre-dispatch inspection by Indian representative. तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें इंडियन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो एम्यूनेशन तभी रशिया से शिप हो पाएंगे जब उनका पीडीआई कंडक्ट हो जाएगा बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। और अगर बात करें पीडीआई की तो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसीजर हो गया इंडियन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, और उसकी वजह से अभी तक वो जो लॉट है, कार्गो है, वो रशिया के वेयरहाउसेस में पड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी ने अभी तक लास्ट 7 मंथ में कोई भी पीडीआई कैरी आउट नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है? डेफिनेटली उसका रीज़न कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि आर्मी ने पहले डिक्लाइन कर दिया था कि वो अपने किसी भी ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर को पीडीआई करने के लिए रशिया नहीं भेजेगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। और इसके बाद जब आर्मी तैयार हो गई, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिफ्यूज कर दिया किसी भी डिफेंस पर्सनल का ट्रैवल करने से, तो जिसकी वजह से पीडीआई एक्चुअली हो नहीं पाया। पहले आर्मी ने डिक्लाइन किया दैट दे आर नॉट गोइंग टू सेंड देयर ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर टू रशिया इन दिस कोविड-19 सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑल्सो रिफ्यूज टू सैंक्शन देयर ट्रैवल। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्यों रिफ्यूज कर दिया? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इनटू दैट प्रोसेस। और अभी के लिए गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट इज मोर ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल रादर देन अदर सेक्टर्स, तो जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को इनकर्ट करने से मना कर दिया। तो ये तो केस इंडियन आर्मी के साथ था। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की और नेवी की, तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने जो रिक्वायर्ड पीटीआई थे उनको प्रॉपर टाइम में कंडक्ट करके जो उनके एम्यूनेशंस की उनकी डिलीवरी भी ले रही है। दिस पर्टिकुलर पेक्यूलर केस इज जस्ट एसोसिएटेड विद आर्मी। And how Indian Air Force and Navy has been able to successfully complete the PDI? This was done because of the simple expedient of authorizing the air and naval attached posted in Indian Embassy in Moscow. तो जो इंडियन एम्बेसी मॉस्को में, वहाँ पर जितने भी जो उनके ऑफिशियल पोस्टेड थे इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के, उनको ऑथोराइज कर दिया फॉर कैरी आउट द इंस्पेक्शन। यहाँ से कोई ट्रैवल एसोसिएट ही नहीं किया गया, यहाँ से कोई ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर भेजे ही नहीं गए, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उस पर कोई भी रिफ्यूजल करने का टाइम ही नहीं मिला या अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने अपने रिक्वायर्ड पीटीआई को टाइम पर कंडक्ट किया और अपने जो ऑर्डर्स थे एम्यूनेशंस की उनकी डिलीवरी भी ले ली। बट दिस कैन नॉट बी डन बाई, दिस कुड हैव not be done by army, and because of that $190 million ammunition is still lying on Russia or Russian warehouses. अब देख लेते हैं some other news clips. Clix submit offer for up to 90% in LVB. So Chennai headquarter Lakshmi Vilas Bank, that is in short called as LBB, where shareholders had recently voted against the appointment of 7 directors, including the chief executive and managing director,
said on Thursday it has received the indicative non-binding offer from Clix Group. जैसा कि हम continuously कई दिनों से discuss कर रहे हैं that Clix Group is going to buy or going to invest into LVB Group with certain conditions, जिसके लिए उन्होंने authorities को भी approach किया था for relaxation of certain rules and regulations, जिसमें उन्होंने directors के लिए indemnity मांगी थी और फंड लिमिट्स को लेकर भी कुछ रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन मांगा था. तो फाइनली एज पर द एलवीबी ग्रुप दे हैव रिसीव्ड द ऑफर फॉर 90% ऑफ देयर स्टेक बाय क्लिक्स कैपिटल. And according to the offer, Clix Group stake in the struggling bank could exceed up to 74% with its capital infusion of 1,500 to 1,700 crore. Clix Capital, that is actually backed up by Eon Capital, has submitted its letter of intent to LVB Group on June 15. But अभी recently 90% offer के लिए Clix Capital ने proposal submit किया and that is non-binding offers on LVB. Eon, a partnership between New York-based Apollo Global Management and ICICI Venture, saw two entities parting way on June 10, but the funds continue. तो Clix basically Eon Capital backed company है. Eon is the joint venture of Apollo Global and ICICI Venture. लेकिन जून 10 में ये दोनों वेंचर अलग हो गए थे या बोल सकते हैं सेपरेट हो गए थे, बट इनका जो फंड है दैट स्टिल कंटिन्यू. तो जो भी डिसीजन होगा अब एलवीबी के स्टेक सेल को लेकर के दैट विल बी टेकन ऑन द एलवीबी बोर्ड मीटिंग दैट इज एक्चुअली शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Future Amazon plan arbitration over RIL deal. As we have discussed, Amazon के पास दो ही options थे, either to go for court or go for arbitration. So ऐसा expectation आ रही है कि जो RIL की deal को लेकर के Amazon ने Future Group को जो notice serve किया था उसको लेकर के Future और Amazon they can go for arbitration and issue can be resolved later. हालांकि इस पर्टिकुलर लीगल नोटिस की वजह से कल जो शेयर मार्केट में फ्यूचर ग्रुप के जो स्टेक्स थे, जो शेयर्स थे, उनमें फॉल देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 6.2% से लेकर के -4.8% का. तो चाहे वो फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस हो, फ्यूचर रिटेल्स हो, फ्यूचर इंटरप्राइजेस हो, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स हो या फ्यूचर कंज्यूमर्स हो. तो बिकॉज ऑफ दिस लीगल नोटिस बाय अमेजॉन, फ्यूचर ग्रुप हैव सीन द नेगेटिव change into their share prices. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Expect V-shape recovery in Q2 corporate earnings brokerage. So led by big positive swing in Bharti Airtel net profit, brokerages expect V-shaped recovery in the combined earning of Nifty 50 companies in the July and September quarter, that is Q2 of financial year 21. तो जितने भी brokerages हैं वो ये कह रहे हैं as per the recovery they are seeing into the Indian stock market, individuals or consumers can actually expect V-shaped recovery into the Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21. अगर वी शेप रिकवरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दीज ब्रोकरेज हाउसेस आर एक्चुअली predicting the V-shaped recovery into Indian economy. Previously, even the government and number of government agencies have or had projected the V-shaped recovery into the Indian economy, but because of the localized lockdown, because of the different or second or third waves of the COVID-19 infection, this V-shaped recovery was not possible into the Q1. But as per the brokerages, in Q2, as per the corporate earnings they are seeing, they can actually expect, or individual can actually expect V-shaped recovery in corporate earnings, not in Indian economy but in corporate earnings. जैसे TCS ने, भारती एयरटेल ने ग्रोथ रजिस्टर करी है, उस तरह को देखते हुए जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, दे आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग good growth or the positive growth in corporate earning into the Q2 of financial year. According to the brokerage estimates, Nifty 50 companies combined net worth, it is expected to jump approximately 24% on year-to-year basis into the Q4 of financial year 21. तो
टू में 24% की ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया जा रहा है इन केस ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज। ऑल्दो कंपनीज की अगर बात करें तो जो उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उस पर भी मिक्स डेटा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करने वाली हैं, देयर इज अ मिक्स डेटा। At the other end of the spectrum, Grasim Industry, ONGC, RIL, GAIL, IUC, Bharat Petroleum Corporation are expected to report double-digit decline in net sale year on year during the quarter. तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आगे आने वाले टाइम में डबल डिजिट्स नेट सेल में डाउन प्रोजेक्ट किया है ब्रोकरेज हाउसेस ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गूगल टैक्स mop-up rises 18% after deadline. So the equalization levy or the Google tax or the digital tax collection posted a double-digit growth at the end of second quarter into the current fiscal year, and that is indicating that number of companies जो कि actually पहले Google tax को या equalization levy tax को resist कर रही थी, just like Netflix, Google, अब उन सारी कंपनीज ने गूगल टैक्स, डिजिटल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी को कॉम्प्लाइट कर लिया है, मान लिया है। दे आर नाउ एक्चुअली स्टार्ट पेइंग द गूगल टैक्स। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, गूगल टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, डिजिटल टैक्स ऑल आर द सेम थिंग। इनिशियली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पर गूगल टैक्स इम्पोज किया था तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज थी। कंपनीज ने, इवन यूएस तक ने इंडिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया था अगेंस्ट दिस गूगल टैक्स दैट एक्चुअली इम्पोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ऑल्दो 18% का राइज देखा गया है इन द क्वार्टर वन, और ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो कि पहले एक्चुअली अपोज कर रही थी गूगल टैक्स को, उन्होंने अब गूगल टैक्स को एक्सेप्ट कर लिया है। द mop-up rose by 18.7% आफ्टर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट डेडलाइन एंडेड ऑन वेडनेसडे। अगर आपको गूगल टैक्स नहीं पता है, यू आर न्यू टू माई चैनल, तो यू कैन आप डिस्क्राइब सेक्शन में जा सकते हैं। यू कैन गो ऑन डिस्क्राइब सेक्शन वेयर आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन गूगल टैक्स और डिजिटल टैक्स। अभी की न्यूज़ में इतना ही है कि गूगल टैक्स में 18% का राइज देखा गया गूगल टैक्स कलेक्शन में। दैट्स क्लियरली इंडिकेटिंग दैट नंबर ऑफ कंपनीज, एमएनसीज और ई कॉमर्स कंपनीज जो कि पहले रेसिस्ट कर रही थी गूगल टैक्स को, इक्वलाइजेशन लेवी को, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। And they have started to levy or to submit digital tax or Google tax on their advertising services. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, वर्ल्ड बैंक pegs India's GDP contraction at 9.6%. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.